Okay, friends, so let's proceed ahead with our group discussion session. And this one is the GD session for IOCL. You know, we have in GD a couple of steps. One is introduction stage and then the discussion. And third stage is the conclusion stage in which we have to all conclude whatever we have discussed. That is called the conclusion stage. So now, let me give you the topic for the GD, and you will be given 15-20 minutes to discuss about that topic. And after that, you can provide your conclusion in the this GD session. So, okay, so this is the topic. Uh, role of engineers in disaster management. Role of engineers in disaster management. Role of engineers in disaster management. Uh, Topic was asked in one of the recent GDs. So please take this topic. Yeah, Divya, you were saying something? Sir, I'm from the management background. You're from the management means? Means I'm applying for the HR positions and I don't have any knowledge about the engineering field. So there will not be any generic, there will not be any specific engineering related things. Uh, Okay. so We it is a can very conclude it generic topic. normal. It is a generic topic actually. Okay, sir. So it's basically role of technology in disaster management. Engineers mean technology. So what is the role for that? Okay, sir. Okay, now you're ready. So please unmute each one of you. Please unmute and we can start the discussion. And if possible, be visible also. Okay, so please start it now. Please start the discussion. Good morning, friends. Good evening, friends. I am glad to initiate the discussion today. The topic given to us is the role of engineers in disaster management. It is a very relevant topic. In my opinion, in the disaster management, the engineers also give their efforts equally. Other than that, the NDRF team also there, and the role of engineers. In the such a way there the designing and management also and conducting the assessment and assessment
thoughts also there. So I think there are the major role of engineers also. So I would like to open the house in the discussion. आई थिंक जैसे कि हमारे फ्रेंड ने कहा है सर में कि वो बहुत इंजीनियर का सीरियस काफ़ी इशू ज़्यादा होता है, रोल होता है क्योंकि सर। कभी भी तो नेचुरली जैसे कि सर हैपन इंजीनियर्स का रोल सर बिल्डिंग जो तो यहाँ हमारे पे जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स है है जैसे उनका रोल अर्थक्वेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता अर्थक्वेक है कि बिल्डिंग्स किस तरह से वगैरह हम सर जो डिजास्टर ऐसी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को हम बनाते हैं कम जैसे करें, कि उसके जो सर इम्पैक्ट है हमारा उसको कैसे अर्थक्वेक हम कम बिल्डिंग कर सर सकते हैं। कहाँ पे बिल्डिंग बननी चाहिए, किस तो टाइप जैसे की क्या होता बिल्डिंग है बननी साइक्लोन, चाहिए। जैसे और अर्थक्वेक सर आता है, हमारे बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी में को सर भी जैसे कि नुकसान पहुंचा देते हैं। सर प्रेडिक्टिंग द हमारे क्लाइमेट में सर जैसे जो डिजास्टर्स होते हैं अर्थक्वेक से, ये मेरे बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान प्रेडिक्टिंग पहुंचा देते हैं। तो इंजीनियर्स क्या होता है जो बिल्डिंग का क्लाइमेट कंस्ट्रक्शन करते प्रिडिक्ट हैं करने के लिए सर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी सर अर्थक्वेक इंजीनियर्स प्रूफ के द्वारा बनाते हैं, बनाए मतलब जाते कुछ हैं। सो अर्थक्वेक का एक जैसे मतलब कि सर पैमाना होता है, उस बेसिस पे सर अगर हमारा इतना जो हम मतलब इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सर इतनी किस लेवल इंटेंसिटी में की अगर अर्थक्वेक आता है तो हमारे बिल्डिंग्स को कोई इफेक्ट नहीं हार्म हो पड़ता है। सकता है सर इस एरिया में, तो सर हम उसके अगेंस्ट सर एक्शन भी ले सकते हैं कि जैसे कि हम सर उस एरिया को खाली वगैरह कर सकते हैं। तो सर इंजीनियरिंग जो रोल है सर उसका बहुत इंपॉर्टेंट है सर डिजास्टर मैनेजमेंट में। और सर नहीं अगर डिजास्टर हो भी जाए तो सर उसके बाद भी सर डिजास्टर अभी जैसे देखिए नई नई कहीं जगह पे अर्थक्वेयर जहाँ पे फ्लड ज्यादा आते हैं वहां पे क्या आई करते एग्री हैं विद यू वरुण, जैसे कि डिजास्टर कुछ भी डिजास्टर हो रहा है तो वहां पर उसका स्ट्रेटेजी कैसे हुई, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वहां का, इसका असेसमेंट को लेकर वहाँ की जो जी हम इसको देखिए अभी जैसे कुछ इसको एरिया में मैनेज कर देखिए सकते हैं, इसके बाद से वहां पे देखना क्या, होता है। जहाँ पे फ्लड ज्यादा आ रहे हैं वहां पे देखिए बार बार हमारा क्या होता है, रोड एकदम ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम पूरा रुक जाता है। तो वहां पे क्या होता है, इंजीनियरिंग ही अपना मतलब ब्रेन लगा करके उसको किसी न किसी तरीके से जो हमारा रिवर्स है उसको डाइवर्ट करते हैं, या वहां पे जो हमारा ब्रिज बनते हैं या पुल बनते हैं उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमारा फ्लड्स में नुकसान न कर पाए, न कटान हो पाए उसमें। उससे क्या Yes, होगा, या उससे जो या यस एग्री सर विद यू प्रेम। completely. I completely agree with इंजीनियर्स you, जो है, Prem. इंजीनियर्स जो कि आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके उसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करके भी डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी इसके एफिशिएंटली उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उस मैनेजमेंट को यस इजीली हम आई उसको। एग्री। मैं See, मैं one सर of the one one of मैं the और biggest example in India we can see, one of the biggest example we can see in India, that there is a state called Odisha, which is prone to cyclone in every साइक्लोन्स। some years, some years. So they have created a system, like they've also created their infrastructure that way. The engineers has the main reason the engineers would be there who have provided the infrastructure for the companies as well as the people who live there, so that if something happens, so how fast they first how can they support their system, like uh, they don't, if the situation comes that the building collapses first, so अभी they have देखिए created Yeah, some as kind of guys, I want to add one we more see point, that in today's वाटर world, स्कार्सिटी। like देखिए climates are वाटर changing स्कार्सिटी में क्या होता है, rapidly, कभी कभी and कुछ our एरियाज में क्या होता है, environment is वाटर की इतनी present किल्लत हो increasing. जाती है So कि it's वहाँ के जो crucial फार्मर्स to होते know हैं उनके लिए बहुत know परेशानी होती है। about the क्रॉप को climates and प्रोडक्शन environment करने के before लिए it's या too फिर late. जो भी चीजें जैसे होती है पानी की इसमें So, जरूरत है, वहाँ पे बहुत like दिक्कत इंजीनियरिंग होती का है। यूज engineers जैसे are हम Indians वहाँ पे वो क्या होता है, वहाँ पे Engineers they इंजीनियर्स have का डेवलपमेंट different रोल के different बहुत लिए अच्छा backgrounds होता from है कि different इंजीनियरिंग different उसको platforms आपस like जो chemicals, रोड्स civils, वगैरह हाँ बनते and हैं, next हमारे mining. जैसे रिवर्स में ज्यादा पहाड़ों में रोड्स So बनते I हैं, think रेलवे में each रोड, one of them रेलवे ट्रैक can बनती share है, their तो specific field उसमें and वहाँ their के role इंजीनियर्स रिवर्स का पे काफी and ज्यादा contribute points and also share इन द their वाटर knowledge स्कार्सिटी and प्रॉब्लम। assessment तो to इस तरह से analyze अगर the ओवरऑल हम देखें तो situation and इंजीनियर्स का क्या overcome and होता है, tackle वाटर issues. स्कार्सिटी में रिवर्स को लिंक करने का भी प्रोजेक्ट होता है, वहां भी इंजीनियर्स का कितना यूज कर सकते हैं हम लोग। exactly. यस So So सर I मैं आई think ये वांट now टू कहूंगा ऐड now वन कि मोर पॉइंट now प्रेम की disaster इंजीनियर्स क्योंकि management हर में फील्ड में होते engineers हैं, का हर क्या फील्ड रोल में है? इंजीनियर्स होते हैं, तो उनका उनका जो सपोर्ट होता है ड्यूरिंग, मतलब डिजास्टर डिटेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा होता है कि डिजास्टर होने वाला है, और डिजास्टर होने के बाद भी आई बिलीव कि एनडीआरएफ के साथ साथ इंजीनियर्स ही होते हैं जो उसको रीलोकेट करते हैं, फिर से उस गाड़ी को कहते हैं ना स्टार्ट करते हैं। सही तो कह रहे जैसे हमने देखा हैं था अभी। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, तो उसके बाद किस नदी को रोकना है और कहाँ पुल बना के इमीडिएट हेल्प जो देनी है, तो ये अभी इंजीनियर्स ही कर सकते जोशीमठ हैं, उनके बिना कुछ। या जोशीमठ आई एग्री विद यू तो हरीश, वहाँ पे क्या होता इंजीनियर्स है, का एक रोल ये भी अभी होता है कि वो उसको देखना होता है कि ये कंस्ट्रक्शन किया तो डिजास्टर जमीन के जो हुआ अंदर वो ही कितना चला रहे रिस्की होंगे। है, इसको कैसे यस। मिटिगेट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको किसका मैनेज कर, डिजास्टर के होने के बाद भी हम उसको प्रॉपरली किस प्रकार से मैनेज करना है, इस पर यस बिल्डिंग अभी देखिए स्ट्रक्चर या फिर जोशीमठ में जो क्या भी हुआ था, वहाँ लोकेलिटी पे वहाँ क्या की हुआ है, था, उनके पीछे वाले वहाँ जो की इंजीनियर्स का रोल कंस्ट्रक्शन पावर प्लान सप्लाई डिजास्टर होने वगैरह से इसको भी मैनेज करना होता है। प्लान को इंजीनियर्स कैसे का करता रोल है, तो उससे डिजास्टर क्या हुआ, होने से जो हमारा जमीन के अंदर की परतें थी अपनी आप दरार इंजीनियर्स पड़ने का रोल लगी। डिजास्टर होने दरार से पड़ने पहले भी लगी तो होता उसका है सर, इम्पैक्ट जैसे कुछ कि किसी कुछ को पता ही नहीं जैसे चला हम कि किस इंडिया जो बेसिस पे हम यहाँ पे क्या होने डेवलपिंग लगा। कंट्री है, तो जो उसके बाद जो वहां पे हमारा एनडीआरएफ की इंफ्रास्ट्रक्चर टीम जो गई, रोड वगैरह, इंजीनियर्स के जो टीम तो गई, उन्होंने डिटेक्ट किया कि माउंटेन्स में जो रोड्स हमारा वगैरह बनते अंदर हैं, तो खराबी हुई
इस उसके हिसाब से इम्पैक्ट के थ्रू वहाँ पे जितने उनको भी बनाना एलिमेंट है, वो हमारी डिस्टर्ब उसका हो जो गए, इन्वायरमेंट तो है आपस में जैसे इन्वायरमेंटल वो disturb हो जैसे गए। अभी टेक्नोलॉजी की लेस वजह से ही इफेक्ट हो। अब क्या होता है, तो फ्लड्स भी प्रेडिक्ट होने लग गए हैं कि ये यहाँ पे सुनामी आ सकती है, या जो वेव्स हैं ये नॉर्मल से ज्यादा हाइट पे चल रहे हैं। एआई के थ्रू ये पॉसिबल हो चुका है और एक्चुअली रियल टाइम में डिटेक्ट भी हो रहा है। तो अभी अभी कोस्टल एरिया से मौसम बहुत विज्ञान ने ज्यादा सब हेल्प इतना होता है। किया है कि वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं पहले से एग्जैक्टली, ऐसे। तो वो काफी हेल्पफुल है और आई बिलीव इंजीनियर्स ने ही टेक्नोलॉजी बनाई है, तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है कि उनको पता है कि जैसे ही कुछ हुआ तो उन्हें पता है कि क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो इंजीनियर्स वहां आर से डेफिनेटली डिजास्टर मैनेजमेंट में, दे हैव अ वेरी बिग एंड इम्पैक्टफुल रोल in controlling and detecting Yeah, disaster. I agree with you. I want to add one more example. Like recently, जो उत्तराखंड में जो जोशीमठ में जो क्रैक्स हुआ था वहाँ पे बिल्डिंग्स में, और तो वहाँ का उसका जो टेक्निकल एनालिसिस इंजीनियर्स ने किया था, तो वहाँ पे उसका कुछ रीजंस भी निकल के आए थे। तो टेक्निकल एनालिसिस में काफी हेल्प मिलती है इसकी। वहाँ पे Exactly. जियोलॉजिकल जैसे सर्वे भी हुआ, तो जैसे वहां अभी से पता सर चला कि अंदर की जो प्लेटें थी वो आपस में डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से जितना भी एरिया जहाँ पे एनटीपीसी वालों ने कंस्ट्रक्शन किया था उसके अंदर सारे दरारें पड़नी स्टार्ट हो गए थे। तो वहां भी इंजीनियरों ने ही अपना सारा दिखाया, वहां का जितने भी चीजें थी डिटेक्ट किया, उसके बाद जो प्रोजेक्ट था रुका, फिर उसके बाद भी See, अभी जैसे disaster है हिमाचल basically प्रदेश many of में many types. Some is one you can take it like कोई फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, तो फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, एंड अर्थक्वेक हो गया. So these all can be detected through technologies. जो भी टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं, we all know that technology are made by the engineers. ठीक है, एंड नॉट जस्ट कि इफ दे कैन डिटेक्ट, दे आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन आफ्टर एनी डिटेक्शन इज हैपनिंग, या एनी any mishap happens, any disaster happens. Like if you can go to, if what happened in Turkey last year, earthquake came all over from India. Many the government sent many NIRF teams. So in that there would be many engineers who have went there and helped them providing the solution. And also nowadays one of the important thing is drone cameras and cameras which has built by the technology. And in these situations they are the drone cameras and other different type of cameras are coming in handle to see if how people are survive or not, if they can find out if something is happening in a situation, and it's easily detectable because of those. So we can find the मैं survivors who in the पर्सनली situation. कुमार से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे इन हिमाचल में अभी क्या अभी फोरकास्टिंग कर रिसेंटली सकते हिमाचल हैं, प्रदेश क्या में मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो ड्रोन कैमरा का आपने एक अच्छा पॉइंट डिजास्टर उठाया आया कि था। ये जैसे यूजफुल है इसमें कुछ एरिया डिजास्टर जैसे मैनेजमेंट जो में मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने जो के लिए। एरियाज लैंडस्लाइडिंग में आ रहे थे, तो वो जो इंजीनियर्स ने ही वहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि ये एरियाज जो है वो लैंडस्लाइडिंग में आ रहे हैं, तो इन्हें खाली कर दिया जाए। तो जो इंजीनियरिंग का जो काम है वो डिजास्टर से पहले भी और बाद में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो एनएचपीसी है वो रोड बनाती है वहाँ पे, तो इंजीनियर्स पूरा कैलकुलेट करके वो रखते हैं कि हमें ये इस साइड से रोड लेके जाना है, यहाँ से रोड लेके जाना है, इतना हमें मतलब कि इन्वायरमेंट को माउंटेन को काटना है, इन्वायरमेंट को पॉइंट इतना और हार्म ऐड करना करना है, तो चाहते हैं, जिससे अभी देखिए बॉर्डर रोड या आई एग्री विद यू वरुण। जैसे कि कोई फ्लूड आ गया, फ्लूड हैवी फ्लूड हो रहा है, तो वहाँ पे पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो पावर सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो वहाँ पे जो वर्क हम करें वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे पावर सप्लाई को हम अवेलेबल कराएं और इजीली हम जल्दी से जल्दी उसको मिटिगेट कर सकें। एग्जैक्टली, अभी क्या लाइक होता है ना, साइक्लोन जब आते हैं, अभी या लास्ट ईयर मुंबई में एक साइक्लोन आया था, उसने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया था, बट वो साइक्लोन प्रेडिक्ट हो गया था, सही टाइम पर प्रेडिक्ट हो गया था और लोग तो इवैक्यूएट नुकसान हो से गए बचत थे। होगी। तो उसने एक्चुअली जानलेवा साइक्लोन नहीं बना वो। हाँ, नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, बट वो जानलेवा नहीं हुआ। तो अभी डेफिनेटली, हमारे और यहाँ उसके बाद जैसे ये क्या इंजीनियर्स होता ने है ना, ही वहां पर पावर रिस्टोर करी, इंटरनेट रिस्टोर करा, ताकि सब एक अपना एक इकोसिस्टम फिर से डेवलप हो। तो नो डाउट या इंजीनियर्स का तो रोल एक होता है। पॉइंट या और ऐड करना एनवायरमेंट चाहता हूँ इंजीनियर और जो जो बॉर्डर रोड जोग्राफिकल इंजीनियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो होता है, वहाँ पे मिलिट्री का होता है, मिलिट्री को इनका भी एक बड़ी मतलब बॉर्डर पे पहुंचने कंट्रीब्यूशन के होता लिए, है। वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जैसे लेह लद्दाख में देखिए, वहाँ पे पहुंचना आसान नहीं होता है, वहाँ पे डिजास्टर मतलब कभी भी कुछ भी हैपेंस हो सकता है, रास्ते में जा रहे हैं बगल में गिर गए घाटी में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन होता है उसको इस डिजाइन में बनाया जाता है, बहुत मोड़दार होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक्स लगाने पड़ते हैं कि जिससे जो हैपेंस हो हम बॉर्डर पे आराम से पहुंच भी सके, अपनी सिक्योरिटी भी बॉर्डर की कर सकें और हमारे पास नुकसान भी कम ना हो। तो वहाँ पे इंजीनियर्स हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी अपना मैनेज करते हैं कि किस तरह को डिजास्टर्स या को कम कर सके। One of the basic, आई एग्री one of विद the यू example प्रेम। would be Atal Tunnel, which has been constructed in the Manali area just to have provide a good transport for the people and also ट्रांसपोर्ट the के लिए military वहाँ in पे the पूरा country. बर्फ जमे रहते थे, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो डिले हो जाते थे, पूरा Yeah. बर्फ उसके ऊपर डाल करके हटाना पड़ता था,
उसके बाद ही हुआ। तो यहाँ पे इंजीनियर्स का रोल एग्जैक्टली बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली अश्वनी ने जैसे सही बताया अटल टनल का, तो वो रिजल्ट होगा किसी इंजीनियर ने जब ये इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया होगा, राइट, दिया कि है। प्रॉब्लम ये, अब सॉल्यूशन कैसे दें, एक टनल बनाते हैं। और वो टनल छोटा मोटा टनल नहीं है, बहुत बड़ा टनल है, तो Yeah. इंजीनियरिंग से ही वो पॉसिबल हुआ है। तो Yeah, I agree with you. सॉल्यूशन इंजीनियर्स का देना रोल डिजास्टर मैनेजमेंट के डिजास्टर होने के बाद ही नहीं, उसके पहले भी होता है रोल। पहले इंजीनियर भी का होता मेन रोल बिल्कुल पहले बिल्कुल होता है। डिजास्टर को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, डिजास्टर होने इसको कैसे प्रिवेंट, डिजास्टर होने की अपन प्रोबेबिलिटी कैसे मैनेजमेंट कम भी कर सकते हैं यहाँ और पे फोरकास्टिंग भी न्यू कर ले टेक्निक्स के थ्रू। तो वो एक प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का रोल होता कंडीशन है भी ताकि एनालाइज कर ले डिजास्टर भी कि नहीं क्या हो, फ्यूचर में कोई होने वाला डिजास्टर है। ना हो। मुझे ठीक है, लगता है जो अकाउंटिंग अटल मैनेजमेंट टनल आती है, थी उसी वो केस मैनेजमेंट मतलब बोलते हैं जो जो इंजीनियरिंग एरिया था, वो से कर जो सकते हैं। आर्मी को 20 मतलब 365 दिन वहां पे जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता था, वो उसके लिए था। क्योंकि जैसे हम स्नो वहां पे पड़ती थी तो वो रोड ब्लॉक हो जाता था, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में मतलब थोड़ा कंफ्लिक्ट हो रहा है इसमें, मुझे ऐसा नहीं। वरुण, हम ये कह रहे थे कि जैसे इंजीनियर्स सॉल्यूशन भी देते हैं ना प्रॉब्लम्स का, तो रियल टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम है, अब जैसे डिजास्टर हुए थे तभी तो रास्ता ब्लॉक होता था ना, कभी कोई गाड़ी फंसी या कुछ हुआ, तो उसी का सॉल्यूशन दिया इंजीनियर्स ने एक टनल बना के। और वो टनल भी सेफ टनल, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल टनल जो कि मतलब पावरफुल नहीं है, या फिर छोटी टनल है, एक बहुत लंबे जो पहाड़ को काटना। जो रूट है, जो इफ यू सी द रूट, वहां पे रेगुलर कुछ ना कोई एक्सीडेंट होते रहता था। यू कांट, और ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते Yeah. कि तो वो डिजाइनिंग छोटा टूल मोटा, भी वहाँ इट पे वाज अ इंजीनियर्स ने रियल रोल टाइम, अच्छा हर अदा किया। कुछ मंथ वहां पे कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते थे, यस उसको कम बैक किया बाय इंजीनियर्स। जो सी, वी कांट से दैट डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ एक बड़ा इवेंट हो तो तब, छोटा छोटा इवेंट्स आल्सो काउंट। कंट्रोल कर सकते हैं अगर पहले से प्लानिंग करें डिजास्टर का कि ये फोरकास्टिंग इस तरह से हो सकता है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट से हम इसको पहले से कम कर सकते हैं। ये बात है। हाँ, जैसे कि सिविल इंजीनियर, एक जैसे कि ब्रिज बनता है तो उसका मटेरियल वगैरह क्वालिटी चेक करना एक इंजीनियर का रोल होता है, ताकि हम ब्रिज में ऐसा कुछ सरकारी कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो। एग्जैक्टली तो हाँ, ये भी जैसे पॉइंट कि है। मैकेनिकल इंजीनियर का एक रेलवे, जैसे रेलवे में वो एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, तो देयर वाज ए मैसिव ह्यूज डिजास्टर वगैरह, तो देयर वाज इंजीनियर्स आल्सो ए प्लान रोल ऑफ तरीके से इंजीनियर्स। पूरा जो अपना प्रोजेक्ट है वो पूरा इंजीनियर्स जो है प्लान तरीके से करते हैं कि कम से कम लॉस हो, अगर लॉस हो भी तो हम उसे कैसे टैकल कर सकें। तो मुझे एग्जैक्टली मुझे हमें जो देखने में लगता है कि ये नॉर्मल एक टनल बना दिया बस कुछ नहीं हुआ, या नॉर्मल एक मेट्रो हाँ, बना दी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल एक रोड बना दी कुछ नहीं है, बट एक्चुअली वहाँ रूट प्रॉब्लम, रूट कॉज जो होता है वो बहुत जो टेक्निकल होता है, सेफ्टी जो कंसर्न्स वगैरह होते हैं वो पूरे, एग्जैक्टली जो भी पैरामीटर्स हैं वो पूरे चेक यस, करते हैं, जो भी वो इंजीनियर ही या जो एक इंजीनियर्स बनाते हैं, बिल्कुल। वहां पे ओवरऑल काफी में टेक्निकल रीजंस होते हैं उसके पीछे। या इफ और ऐसे भी देख, जहाँ पे ये जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होता है, तो द गवर्नमेंट आस्क द इंजीनियर्स टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू देम, एंड हर घर में एक वैसा एरिया बनाया जाता है कि तुम अर्थक्वेक का अगर सिचुएशन आए तो यू कैन कीप या योरसेल्फ सेफ। या जोन तो डिसाइड होता वो है, रेड डिजाइन, जोन, हाँ, येलो जोन, जो ग्रीन जोन। या वो डिजाइन कौन जैसे कि करके देता है? द हम प्रोसेस, द पूरा प्रोसेस, प्लान पूरा इंजीनियर्स ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। करके इंजीनियर्स अश्विनी करके देते हैं। अश्विनी बैंकर्स कुमार भी जी या से होते बिल्कुल हैं, सहमत हूँ। जैसे जापान में हर जो हर आपको साल जाके फ्लड दिमाग आता है, लगाते हर हैं। हर हर बार वहाँ पे तबाही होती है, तो इंजीनियर्स ही हैं वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी लॉस हो, चाहे वो ह्यूमन लॉस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी तो, लॉस हो, तो जो भी लॉस हो वो कम से कम हो, कि जिससे कि या आई एग्री अच्छा, विद यू वरुण। देखिए कुछ फॉर डिजास्टर वाले एग्जांपल मैं एक इंडस्ट्री एग्जांपल होते ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि जो इंडस्ट्री रिसेंटली वाले लोग वर्क न्यू करते हैं। पार्लियामेंट बना है, तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, तो वो एक इंजीनियर्स की हेल्प की वजह से एक अच्छा अच्छा न्यू पार्लियामेंट एक बिल्डिंग पॉइंट को और हम एक अर्थ पॉइंट और ऐड रेजिस्टेंस, करना चाहूंगा, एक पॉइंट अर्थक्वेक और। रेजिस्टेंस हम कर पाए, तो वो अभी क्या होता है एक कि बड़ा कुछ बड़ा रोल है कंपनीज में क्या उसमें होता है, जो इंजीनियर्स का। हमारे लेबर वर्क करते हैं, कभी मान लीजिए कोई कंपनी में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहां पे भी कभी कभी कुछ ऐसा घटना हो जाती है कि वहां पे भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। उस वहां पे भी इंजीनियर्स ही होते हैं जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं कि नए नए कंस्ट्रक्शन वर्क में कि किस तरह से मैनेज किया जाए कि हमारा जो लॉसेज हो, जो हमारा वर्कर्स हैं वो कम से कम इफेक्ट हो पाए, जिससे हमारा काम भी हो जाए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए, और वहाँ जो हजार्ड्स है उसको भी कम कर सके। तो वहां भी इंजीनियर्स का ही रहता है कि अपना किसी ना किसी तरीके से वो अपना जो या कंट्रीब्यूट आई है। एग्री विद यू प्रेम, की जो हम रियली में जो इंजीनियर्स करते हैं उसके अलावा उसको पेपर वर्क भी काफी करना होता है, पेपर पे हमको पूरी प्लानिंग करनी होती है और कैसे हम उसको टेक्निकली हैंडल करेंगे, तो ये सब इंजीनियर्स का रोल होता है उसमें। जैसे जो अभी डिजास्टर, अभी कोई भी डिजास्टर अभी होता है तो बेसिकली दो तीन चीज इंपॉर्टेंट रहता है। एक होता है ह्यूमन लॉस बचाना, दूसरा अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई भी डिजास्टर होने के बाद फाइनेंशियल लॉस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो इम्पोर्टेंट। उसको बैकअप कैसे करना है? उसको बैक करने के लिए देयर इज अ फास्ट, द इंजीनियर्स कम टू द प्लेस, एंड वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वापस से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जरूरी है, सो दैट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट तुरंत या इंप्रूव हो। अदरवाइज जस्ट जो भी एरिया है उस एरिया का जो
मेन मोटिव है, जो भी कोई भी एरिया ले लो, चाहे तुम अगर उड़ीसा का भुवनेश्वर है वो एरिया ले लो, अगर वहां पे साइक्लोन आ रहा है तो अब अगर तुम लोग उसको फास्ट नहीं काम किया जाएगा तो फिर financial loss will come, because it's a hub for IT. It's a kind of small hub for the IT industry, so they have बस to बिल्कुल revive it या again. आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू अश्विनी की बात से बिल्कुल सहमत करता जैसे हूँ। कि मैं कोई किसी भी की रेल बात से एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल जैसे कि सहमत हूँ उड़ीसा सर। में वो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी डिस्टर्ब हुआ था। तो जल्दी से जल्दी उसको प्रिवेंट उसको जल्दी से जल्दी उसको हेल्दी कंडीशन में लाने के लिए इंजीनियर्स का एक रोल होता है कि उसको जल्दी कोई भी इकोनॉमिकली हमको कोई भी लॉस ना हो, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं डिस्टर्ब ना हो, इससे डिजास्टर कभी रेलवे भी हो को भी सकता कोई है, किसी भी इकोनॉमिक समय लॉस हो ना हो। किसी मैं भी समय हो अजय जी सकती है, से तो बिल्कुल हमें सहमत अलर्ट होना चाहिए रखता हर एक हूँ। फील्ड हमें में। हमें चीजें होती टेक्नोलॉजी हैं जो हम जैसे जो जो कंट्रोल हमारे इंजीनियर है वो तत्काल कर सकते रिसेंटली हैं, न्यू कुछ न्यू चीजें होती हैं जो टेक्नोलॉजीज हमें भी, कुछ टाइम में भी कंट्रोल करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कभी जो भी हमारे कहीं भी इंजीनियर्स रोज आते हैं तो वहाँ एक दिन में कंट्रोलिंग नहीं होगा, लेकिन ये है कि इंजीनियर्स का अगर उपयोग हमारे करें, सही से उनका एप्लीकेशन करें, तो फ्यूचर का प्लान बना करके उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि जहाँ फ्लड एरिया ज्यादा है वहाँ हमारा और ब्रिज या जो पुल हमारे इस तरह से बना दें कि हमेशा के लिए हो जाए वहाँ पे। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी इंक्रीज करेगी और जो हमारा जो हमारे इंजीनियर टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा इसमें जो हमारे इंजीनियर्स है वो रिसेंटली नई नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि जिससे हम अपने जो जैसे कुछ जो पीपल्स होते हैं वो अवेयर नहीं हो पाते अच्छे से, उन्हें पता नहीं लगता कि कितना डिजास्टर हो सकता है इस चीज से। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पे इतना फ्लड आ सकता है, बट उन्हें वो बिल्कुल ही अनअवेयर थे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अवेयर मतलब बना रहे हैं कि जिससे हम अवेयर करवा सकें उन्हें, अपने जो पीपल्स हैं उनको, कि जिससे ह्यूमन लॉस भी कम हो सके। और या दूसरा जो एग्जैक्टली अभी जैसे टेक्नोलॉजी रिसेंटली डिवोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इनिशिएटिव मोर ऑफ के जो फोन में इमरजेंसी कॉल्स एसएमएस की के वो थ्रू अपडेट टेस्टिंग कर करते रहे थे। थे, हाँ, इमरजेंसी एसएमएस। कॉल्स की टेस्टिंग कर रहे थे, तो ये भी एक इंजीनियरिंग की ही वजह से है। सॉफ्टवेयर और जो इंजीनियरिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहले से कंपनी के बारे में जानकारी 3D हो जाती मॉडल्स है वगैरह जो तो बनते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी भी हम उसको यूज कर रहे हैं कि जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो हमारे इसमें भी इंजीनियर्स का काफी ज्यादा रोल होता है, जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन जो भी हम यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसमें भी इंजीनियर्स का काफी ज्यादा रोल होता है। इंजीनियर्स का तो वो Okay, अभी एक एक करके कंक्लूड करो, ईच वन ऑफ यू कंक्लूड वन बाय वन। Am I audible? early so that things can be normal for the people. एक पॉइंट और है, जैसे क्या होता है डिजास्टर कभी कहीं भी हैपेंस हुआ तो हमारा तत्काल तो राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, हम्म, लेकिन एनडीआरएफ की टीम में ही हमारे इंजीनियरिंग के कुछ टीम इस तरह से होते हैं जो राहत बचाव कार्य के अलावा हमारे कुछ नई नई टेक्निक्स के थ्रू जो हमारे जो फंसे हुए मलबे होते हैं उनको निकालने में भी उनका योगदान होता है। जैसे मान या लीजिए उनको रोड ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए पूरी टीम आ जाती है कि किस तरह से कम समय में इंजीनियरिंग का उपयोग करके ही तत्काल हमें उसमें रोड भी चालू करना है, हमें पैसेंजर्स का भी ध्यान रखना है, हमारे जो उसमें फंसे हुए यात्री हैं उनको भी प्लीज जल्दी से कंक्लूड नाउ निकालना वन है। बाय वन। वहां पे हमारी टेक्नोलॉजी का ईच वन उपयोग ऑफ यू प्लीज कंक्लूड, एक एक करके कंक्लूड करो, ईच वन। प्रेम प्लीज कंक्लूड एंटायर डिस्कशन नाउ। है सर। थैंक यू सर। रोल ऑफ इंजीनियर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक बहुत मतलब लेटेस्ट टॉपिक है जो बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव भी है हमारे मतलब मैनेज करने के लिए, किसी के लाइफ को भी या किसी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। इंजीनियर्स का क्या होता है रोल, वो अपना नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो नई नई चीजें होती हैं, इनोवेट चीजें करते हैं, नए ब्रिज बना करके, नए टनल्स बना करके, नए रोड की कनेक्टिविटी दे करके कि जो हमारे लॉसेज होते हैं डिजास्टर के थ्रू उसको कम किया जा सके, और जो फ्यूचर्स प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से वो डिजास्टर दोबारा हैपेंस ना हो। कुछ होते हैं जैसे फ्लड्स किसी एरिया में आ गए तो वहां पे हम नए नए पुल बना दें जिससे कि हमारा जो पानी है वो नीचे से ही निकल जाए, रोड हमारा कटिंग ना हो, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे मतलब नुकसान नहीं होगा, हमारा इकोनॉमी भी इंक्रीज करती रहेगी। तीन तरीके से है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन्स है, वाटर स्कार्सिटी है। यहाँ पे क्या होता है कई रिवर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं कि कुछ एरियाज में जहाँ पानी की कमी है वहां भी पानी सप्लाई पे पहुंचाया जा सके। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंजीनियर्स का बहुत ही बड़ा योगदान है डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, हेल्प करने के लिए। Thank you. ओके नेक्स्ट अश्विनी। Yes, sir. So our group topic was role of engineers in disaster management. So we as a group had a very good discussion regarding that.
And firstly we discussed about what are types of disasters like flood, tsunami, uh, tsunami, earthquake are the basic things which disaster which happens in India and any other country. So we discuss on different examples of Japan, Turkey, then in the Odisha, Himachal Pradesh, which are the which has been the nearby scenario which we have been seeing in from quite some time, and some are very latest. And then we talked about how as a group we discussed about how engineers are helping them by providing prior knowledge about the situation. Like if there is a tsunami, they can provide detect it before that before the tsunami comes, and same goes for flood and the cyclone. And by that, the government of India the government can help to evacuation of people, and also save the financial losses. If there is any financial losses, the engineers can help come and fastly try to prevent and provide the best solutions in for the same. And also we discuss about how governments are investing more in the R&D part of the R&D part, so that these disaster can be prevented and the losses should be very less. So, thank you. Yeah, Rakesh. राकेश आवाज नहीं आ रही है आपकी. राकेश can't hear you. Hello. हाँ अभी आ रही है. Hello. बोलिए Hello. बोलिए राकेश. Thank you, sir. Give me opportunity to give conclusion on the topic of role of engineers in disaster manager. We had done healthy discussion on it. जब सबने ग्रुप ने हमने बहुत अच्छी बात की है कि रोल इंजीनियर का क्या रोल होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट में. हमने सबसे पहले बात की कि टाइप्स के डिजास्टर होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, या फिर मैनमेड डिजास्टर. या फिर मैनमेड डिजास्टर जैसे एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनते वक्त वो गिर जाता है. इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि बिहार का इंसिडेंट हुआ था. या फिर मेरे ग्रुप के दोस्तों ने अच्छे एग्जांपल दिए कि उड़ीसा का साइक्लोन हो, मुंबई का साइक्लोन, या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का जोशीमठ हो. यहाँ पे किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, इंजीनियर का यहाँ पे क्या रोल होता है. हमें इंजीनियर का रोल सिर्फ बनाते वक्त नहीं होता है. अगर कोई काम बनाने के बाद अगर बिगड़ता है तो इंजीनियर के हम हेल्प ले सकते हैं कि बनाने में क्या प्रकार का इसमें कमी रह गई थी, ये हम यूज करके नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Okay, Harish. थैंक यू. Thank you, sir. Our topic of today's discussion was role of engineers in disaster management. So, a group collectively agreed to the point that it is true that the engineers do have a very important role in the managing the disaster management. So, we talked about our states and other countries also, how different types of engineering help we have seen. For example, we talked about Odisha, Kedarnath, Leh Ladakh, Japan, and Himachal Pradesh, and how these particular states and countries these were hit by some disaster, and the engineers took a very strong stand there and made them out of the situation. Also, our friend talk about they collectively made very good points about the discussions. Also, we talked about how the new technologies like drone, flood detection, 3D modeling, seismographic, and AI technologies have really helped these engineers in predicting and finding the solutions when the disaster has just struck the place. And also, we talked about how different disasters have really changed how we approach to the problem solving thing. So at the end, we all agreed to the point that yes, engineers do have great role in disaster management. Thank you. Okay, Varun Kumar. सर जैसे जो टॉपिक था सर, जो हमारा जो रोल ऑफ इंजीनियर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सर हमारा काफ़ी हमारे ग्रुप का काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रहा है. और सर हमने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें डिस्कशन किए हैं. हमने काफ़ी कंट्रीज और 3D टेक्नोलॉजीज और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसमें डिस्कशन किया है. और सर इसमें मुझे लगता है कि सर जो ग्रुप को लगता है कि जो हमें डिजास्टर इंजीनियर्स का रोल सर डिजास्टर से पहले भी और सर डिजास्टर्स के बाद भी होता है, तो जिससे कि हमारे सर जो इकोनॉमिक लॉस, जो हमारी डेथ रेट्स जिससे हम कम कर सकें. तो सर जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंजीनियर्स का रोल डिजास्टर मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा है. थैंक
Okay, so I think everybody has spoken, right? Now let me give you the feedback of this part. See, you people need to understand the topic first. आप सब लोग इंजीनियर्स एंड उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. The topic was not like that. Topic was role of engineers in disaster management. So what would have been the best introduction line was like, friends, the topic for the discussion given is role of engineers in disaster management. So to understand the role of engineers, we should first of all understand what is a disaster management. We'll be talking in context of India, and we will classify the disaster management, disasters. Sorry, what kind of disasters we have in India? Like we have earthquake, we have cyclone, we have natural disaster and man-made disaster. Natural disaster में we have earthquake, cyclones, and we have drought, we have flood, and man-made disasters are also there, like some kind of accident, industrial accident. It can be terrorist activities. So after discussion of after dividing these disasters, we should then talk about how the technology plays a role, because engineer as a person, instead of discussing engineers as individual, we should discuss about the profession, and we should discuss that what role technology is going to play in disaster management. For example, to mitigate the effect of cyclonic disaster, early warning system can be very helpful. So, in some places, disaster can be prevented. In certain things, disaster impact of disaster can be mitigated. In certain cases, the disaster cannot be controlled. Its impact cannot be maybe even if its impact is not reduced much, but at least after disaster, post disaster damages can be controlled. तो क्या डिजास्टर को रोकने में इंजीनियरिंग का हेल्प कर टेक्नोलॉजी का हेल्प हम डिस्कस करें, या डिजास्टर को मिटिगेट करने में, या डिजास्टर के इम्पैक्ट को आफ्टर पोस्ट डिजास्टर इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए. सो दैट इज हाउ वी शुड डिस्कस दिस एंटायर टॉपिक फ्रेंड्स. नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन अमंग ऑल ऑफ यू. तो पहले तुम इसको कैटेगराइज करो, डिजास्टर को कैटेगराइज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिजास्टर, उसको कैटेगराइज करने के बाद एंड देन वी स्टार्ट डिस्कशन. जैसे आपने अर्थक्वेक का बात किया, अभी अर्थक्वेक को रोका नहीं जा सकता, अर्थक्वेक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अर्थक्वेक आएगा कितने रिक्टर स्केल पे आएगा, इसके लिए आप बिल्डिंग्स को अच्छा बना सकते हो. नो थिंक ऑफ सम ओल्ड सिटीज वेयर which are in type 4 zone, type 5 zone of earthquake. उन old cities में construction is already done, buildings are already there. Now we know that there can be earthquake. Now where the role of engineers come, like civil engineers can always think of retrofitting the buildings. Like the building which is not in good shape, it's not very strong, retrofitting can be done, and in case there is an earthquake, then impact can be minimized. So वो एक example है earthquake का. सिमिलरली साइक्लोन का एग्जांपल मैंने आपको दिया. सिमिलरली some personal protective equipment can be designed, like suppose there is some kind of accident, like industrial accident, there's a chemical accident or something, then what kind of mask can be created and all these things can be thought of. अभी हमारे पास एक डिजास्टर हुआ था, जो किसी ने भी, मेरे को नहीं लगता, उसकी बात की, कोविड. अभी अभी तुम कोविड से तो निकले हो, रिसेंटली तुम उस कोविड के डिजास्टर से निकले हो, तो उसमें इंजीनियर्स का क्या रोल हो सकता था. तुम लोग हैंड सैनिटाइजर से लेके तो मास्क तक सारा इंजीनियरिंग ही तो है. कैसे मास्क तुम बना सकते हो, और अगर तुम बहुत इफेक्टिव मास्क बनाते हो और मास्क को यूज करते हो, अभी जो पोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट मास्क बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो. पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाए तो उससे हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े, मास्क डिजाइन कर सकते हो. सारे के सारे इंजीनियरिंग है. तो फ्रेंड्स, यू शुड हैव थॉट ऑफ डिजास्टर फर्स्ट, then disaster का categorization, natural disaster, man-made disaster, and then how to basically make use of technology in mitigating that. ये रोल था. ये इसमें कोई टेक्निकली बहुत ज्यादा अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यू कुड हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वे, राइट. दैट इज समथिंग विच रोल ऑफ इंजीनियरिंग इज. फिर तुम रिसेंट एग्जांपल अगर लेके आओगे ना, देन इट इज ऑलवेज गुड. जैसे अभी हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, एक ही दिन में 5,000 मिसाइल फेंकी. तुम्हें लगता है क्या प्रॉब्लम आया वहां पे, क्या चीज हुई थी वहां पे, एनी आइडिया अबाउट दैट. इजराइल ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए आयरन डोम बना आयरन रखा डोम था. आयरन डोम एक ने तो फेल बचा हो दिया. गया वो फेल हो गया. अगर फेल नहीं हुआ होता तो शायद इतने लोग नहीं मरे होते, जो इजराइल में मरे वो लोग नहीं मरे होते. एंड इतना डिजास्टर ही था वो, मैन मेड डिजास्टर है, टेररिस्ट एक्टिविटीज और समथिंग लाइक दैट. वो मैन मेड एक एक्सीडेंट है, मैन मेड डिजास्टर है वो.
सो अकॉर्डिंगली वो तुम्हें करना था, लेकिन आप लोग अचीवमेंट गिना रहे थे, आप लोग इंजीनियरिंग के अचीवमेंट्स बता रहे थे। जैसे हरीश ने टनल्स वगैरह की बात कर रहा था, प्रेम हिली एरिया में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बातें कर रहे थे, प्रेम अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, वो अचीवमेंट्स के बारे में तुम बात कर रहे थे। अजय ने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, लेकिन अजय बहुत इंप्रेसिव नहीं था, एनर्जी लेवल वाज लेस। बोलने में जो बेस्ट बोल पाया वो हरीश बोल पाया। उसके बाद अश्विनी बोल अच्छा रहा था, लेकिन अश्विनी ने बहुत कम बोला। प्रेमचंद्र का लैक ऑफ एनर्जी था, प्रेम थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। राकेश मेरे को लगता नहीं कि आपका ऑडिबल था बहुत ज्यादा, मैं सुन नहीं पाया बहुत ज्यादा। इस तरीके से तुम लोगों का पार्टिसिपेशन में वो कमी था। तो मैं इस ग्रुप में से ओनली हरीश पास होगा, बाकी लोग पास नहीं होंगे, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे इस ग्रुप से, अगर ऐसा पार्टिसिपेशन है तो। और कंक्लूजन जो था हरीश का, कंक्लूजन ठीक था, उसमें सारे उसने टॉपिक्स का बात किया, एक्चुअली डिजास्टर क्या है और उस तरीके से बात किया, लेकिन बाकी लोगों ने क्लासिफाई नहीं किया था इसको। सो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं किया तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप उसमें। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और टेल? कंक्लूजन एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है तुम्हारे पास, जिसमें तुम अपने मार्क्स ले सकते हो। सोच के कंक्लूजन करो। राकेश, आप थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा आपको। और जब यस पार्टिसिपेट सर। करते हो तो देख भी लेना कि आप आपको पता लग रहा है कि आप पार्टिसिपेट हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा है। मेरे सर में मेरा कुछ कैसा था सर, वरुण का? हाँ जी, वरुण थोड़ा विजिबिलिटी दो मेरे को अपना, सर मेरे इफ यू में कुछ कैन शो योर सेल्फ। मेरे को चेहरा देख के ध्यान में है। हाँ, आपने तो वरुण पार्टिसिपेट किया साथ में, बीच में आपने, लेकिन आप तो विजिबल थे ही नहीं, राइट, पूरे डिस्कशन में। सर मेरा ये प्रेम का सर थोड़ा कनेक्टिविटी इशू था यहाँ पे ना, ये क्योंकि जहाँ पे आपने मैं रह- आपने 3-4 बार पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेशन अच्छा था आपका, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ा विजिबल होना आप, क्योंकि बिना विजिबिलिटी के मेरे को बहुत मुश्किल होता है बताना किसी के बारे में, क्योंकि आप जो बोलते हो तो चेहरे को देख के मेरे को पता लगता है कि हाँ, इस तरीके से आप बात कर रहे हो। आपने 4-5 बार पार्टिसिपेट किया बीच में, पॉइंट्स आपके वो आपने जो डाले हैं वो ठीक है, आपने बोला भी ठीक है, लेकिन थोड़ा विजिबल होना और पार्टिसिपेट करना नेक्स्ट टाइम। तो मेरे सर में कुछ और जो इम्प्रूवमेंट है सर ना। क्लियरेंस क्लियरेंस जैसे सर कई कई बार सर मेरे को सर दिक्कत आती है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, मतलब प्रैक्टिस से ही तो इंप्रूवमेंट आएगा वरुण, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो अगर तुम नहीं भी क्लैरिटी नहीं भी आ रहा, दूसरों को सुन के उसकी बात में आके बात बोलो, तो वो भी तुम्हें हेल्प करेगी चीज। सर एक डाउट था मुझे, हाँ जी। जैसे अगर एक ग्रुप है, ऑब्वियसली ग्रुप में कुछ लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो क्या चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग, लाइक के थोड़ा आप सही लगे? कम्बिनेशन चूज कर सकते हो, कोई ट्रबल नहीं है। अच्छा। कम्बिनेशन में बात कर सकते हो आप, जो अच्छा। हिंदी में बोल रहा है उसे हिंदी में बोल सकते हो, एंड वाइस वर्सा, कोई अच्छा। इशू नहीं है। सर तो मेरे जो में कैसे स्टार्ट करता है सर इम्प्रूवमेंट उसको है। ज्यादा advantage है। टेल मी अगेन। सर सर जो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कैसे करता है सर करना उसको चाहिए ज्यादा आपको। एडवांटेज होता है ग्रुप वरुण, नहीं सुन पा रहा हूँ डिस्कशन। मैं। सर जो स्टार्ट करता है सर ग्रुप डिस्कशन, उसमें सर ज्यादा एडवांटेज होता है। हाँ, जो इंट्रोडक्शन करता है, जो कंक्लूड करता है, उसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन तब अगर अच्छे तरीके से करो। जैसे अजय का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं था आज, अजय का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं था, हरीश का कंक्लूजन अच्छा था। तो जो इंट्रोडक्शन करता है, जो कंक्लूड करता है, मैंने आपको बताया ही, कुछ लाइंस हैं जो आपको याद करनी है, वो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ऑल, उन लाइंस पे याद कर लो, बहुत इफेक्टिव होती है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू कंक्लूड, हाउ टू एंटर इन जीडी, ये 3 वीडियो सुन लो और इंट्रोडक्शन करने की ट्राई करना। Good evening, friends. My name is Varun, and I take the initiative to discuss the topic, to initiate the discussion. I take the opportunity to initiate the discussion. The topic given is this. It's a very, very interesting topic. We all are engineers. We can understand how to, discuss about this particular topic. First, I think we should discuss about the type of disaster, and then how engineer can help to mitigate it and reduce it. Now, I open the house for discussion. तो अगर तुम वो जल्दी से बोल भी दोगे तब भी उसका एडवांटेज मिलेगा। और सर कितने बार सर पार्टिसिपेट करना होता है सर किसी भी मतलब 4 से 5 बार मिनिमम, 4 से 5 बार। तो मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बता दीजिए। प्रेम, जोर से बोलना। आपकी थोड़ा ना, मेरे को लगता है माइक आवाज नहीं आ रही है आपके, प्रेम।
मैं कह रहा हूँ सर कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं सर मेरे में? पहले से तो बेटर है ऑब्वियसली, आज तुम बोलते रहे ना। जी देखो 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज होती है जिसमें तुम बोलते नहीं हो, वो तुम्हारा पहले था। दूसरी स्टेज जिसमें आप बोलना स्टार्ट करते हो, काम की बात नहीं बोलते हो, तुम्हारी वो स्टेज है। तुमने बोला, काम की बात नहीं बोली। तीसरी स्टेज है कि जिसमें काम की बात नहीं बोलोगे तुम। ये है बस 3 स्टेजेस। अभी तुम सर दूसरी ठीक स्टेज में एंटर मार गए हो प्रेम। थैंक यू सर, ये असर हुआ आपके सजेशंस का। प्रैक्टिस करते रहो, और तीसरी स्टेज में ध्यान से सुनना लोग क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हरीश ने जो पॉइंट बोले वो ठीक थे, अश्विनी के पॉइंट भी ठीक थे, लेकिन अश्विनी ने बहुत कम बोला। अश्विनी ने बोला नहीं आज। अश्विनी बोल सकता है, लेकिन इसने बहुत ही कम बोला है। ग्रुप उस तरह से नहीं था ना, सुनने के लायक था। हाँ, वैसे वैसे ही चाहिए। अटेम्प्ट करेंगे सर। और पार्टिसिपेट सर करो, जितना एक ज्यादा कर सकते हो ना यार, बोलो, पार्टिसिपेट करो, प्रैक्टिस से आएगी ये चीज। सर प्रैक्टिस से एक हो चीज जाएगा। और एक हेलो चीज और है कि हमने ये सुना है, मतलब मैंने ये सुना है कि कुछ लोग जीडी में क्या करते हैं, पहले सबको सुन लेते हैं, 4-5 लोग अलग अलग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये सही अप्रोच है या फिर वही हो जाता है कि नहीं फिर डिपेंड वो? करता है कि क्यों 4-5 लोगों को सुनना। हाँ, देखो, जैसे कई मैंने बार आपको बताया काउंटर कि पॉइंट चल रहे इंट्रोडक्शन होते का। हैं एक दूसरे के, तो हो सकता है कि वैसा हो, तो ऐसा करना नहीं, चाहिए या नहीं करना? सर, राइट टाइम क्या होता है, राइट टाइम ऑफ एंट्री? अगर तो तुम कॉन्फिडेंट हो इंट्रोड्यूस करने को तो कर डालो, उसका बेनिफिट होता है, मैं बोलता रहा हूँ। तो इंट्रोड्यूस जो करेगा तो पहला ही होगा। हाँ इनिशिएटिव टेकिंग जो पर्सनैलिटी है ना, वो कैसे पता लगेगा मेरे को कि भाई तुम इनिशिएटिव ले सकते हो। अगर तुम सबको सुन के फिर ही बोल रहे हो, तो मेरे को इनिशिएटिव टेकिंग पर्सनैलिटी पता नहीं चली ना हाँ। आपकी। राइट लेकिन टाइम अगर ऑफ एंट्री। कूद गए लेकिन बोल नहीं पाए, तो जल्दी में कूद गए, मेरे को वो भी नहीं चाहिए। तो ये अपने आप से पूछो कि बोल पाओगे, अगर बोल पाओगे तो इंट्रोड्यूस कर डालो। और सर जीडी में राइट टाइम अगर एंट्री क्या होता जीडी है? में अगर नेगेटिव, हेलो। अगर कोई सेंटेंस का नेगेटिव सपोर्ट होता है, जैसे अगेंस्ट में अगर आप होते हो, सपोज लेट्स पूरा ग्रुप फॉर है एंड आप अगेंस्ट हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है कि मतलब सही बात है? अगर मैं ये कहता कि मेरे हिसाब से इंजीनियर्स का रोल नहीं होता डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो क्या जीडी में फर्क उस नहीं चीज पड़ता। से मेरे लिए जीडी में कुछ फर्क नहीं नेगेटिव वो पड़ता। पड़ेगा? जीडी में सारा ग्रुप एक साइड, तुम एक साइड, वो चल जाता है। बस अच्छा, आपको अपनी साइड को जस्टिफाई करना होता है। जस्टिफाई करना है, एग्जैक्टली। बस अगर कर पाए तो ठीक है। तो सर जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कैपिटल पनिशमेंट इज गुड और बैड, तो इसमें सर वर्सेस होता है, तो इसमें हम दोनों लेके बोल सकते हैं कि सर ले भी एक। सकते हो, हाँ बिल्कुल। आप बोल सकते हो कैपिटल पनिशमेंट के प्रॉज भी हैं, कॉन्स भी हैं। कैपिटल पनिशमेंट ये होती है और प्रॉज ये होते हैं, कॉन्स दोनों साइड ले सकते हो आप, कोई ट्रबल नहीं। हाँ राकेश, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? राइट सर, मैं टाइम टू पूछ रहा एंटर। था राइट टाइम ऑफ एंट्री इन जीडी। क्योंकि मैं वेट दैट करता हूँ, डिपेंड्स। मैं हमेशा वेट करता हूँ 2 से 3 मिनट सबको अच्छे से सुन लूँ, फिर उसके बाद में कौन सा पॉइंट ऐड करके डिस्कशन आगे बढ़ा सकती हूँ। कोई पॉइंट नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर सपोज तुम्हें पॉइंट पहले पता हो कि तुम्हें लगे मैं बोल सकता हूँ, तो आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन जब सब लोग झपटे हैं, बोलने की ट्राई कर रहे हैं, तब मत एंटर करना। तब नहीं बोलने की रिक्वायरमेंट है, तो वेट कर लो। लेकिन जैसे आज कोई भी नहीं बोल रहा था, तो फिर अजय ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो आज तो कोई नहीं बोल रहा था आप में से। अगर सारे वेट करते रहेंगे एक दूसरे की, तो बोलेगा कौन फिर? ये नहीं, पॉइंट है मतलब ना। जीडी सेशन में हर बार ऐसा होता है कि सर पहले 4-5 मिनट में तो हर कोई स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, लेकिन उसके बाद मिड पॉइंट पे सब मतलब कुछ स्टे हो जाते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो राइट टाइम होता है एंट्री करने के लिए। सही बोल रहे हो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन आज का अगर तुम अपना देखोगे जीडी, तो पहले कोई नहीं बोल रहा था। वो सही टाइम होता है, जो बोलेगा उसको नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जो इंट्रोडक्शन करता है उसको भी नंबर मिलते हैं, अगर ढंग से करेगा। जो नहीं कर पाता है और बीच में अच्छा करता है, उसको भी नंबर मिलते हैं। सारे तरह के लोग हैं, राइट। यस तो सर। चलिए, देन आई टेक लीव ऑफ यू नाउ, एंड कीप हाँ। प्रैक्टिसिंग सो दैट यू गेट दिस थिंग, राइट।